ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕਲਾਸ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਲਿਕ ਸੰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਬੇਸਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਹਰਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਲਿਕ ਸੰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਭਾਵ ਬੇਸਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਘਟਾਓ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ 2 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਰਕਸ਼ੀਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਆਦਿ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵਰਕਸ਼ੀਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਪੈਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੌਲਿਕ ਸੰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਬੇਸਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਭਾਗ ਨੇ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਜੋੜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 566 ਜਮ੍ਹਾਂ 98। 566 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 98 ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ। 6 ਤੇ 8 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 14 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 4 ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ 1 ਹਾਸਲ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਤੇ 1 7, 7 ਤੇ 9 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 16 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 16 ਦਾ 6 ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ 1 ਹਾਸਲ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ। 5 ਤੇ 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ 566 ਜਮ੍ਹਾਂ 98 ਦਾ 664 ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 3486 ਜਮ੍ਹਾਂ 4306। 3486 ਜਮ੍ਹਾਂ 4306। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅੰਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋੜਾਂਗੇ। 6 ਤੇ 6 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 12। ਤਾਂ 12 ਦਾ 2 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 1 ਹਾਸਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो 8 ਤੇ 1 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 8, 1 9, 9 ਤੇ 0 9। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਤੇ 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 7 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ 4 ਤੇ 3 7 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, तो ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ 7792 ਹੈ ਜਾਂ 7792 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 112 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਰਕਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 2709। 112 ਜਮ੍ਹਾਂ 2709 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 0 ਲਗਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 9 ਤੇ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 11, ਤਾਂ ਇਹਦਾ 1 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਾਸਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ 1 1 2, 2 ਤੇ 0 2 ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। 7 ਤੇ 1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ 8 ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ 2 ਤੇ 0 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2821। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਖਾਲੀ ਬਕਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਪਾਰਟ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵੀ 3 ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 305 ਜਮ੍ਹਾਂ 299, ਦੂਸਰਾ 2186 ਜਮ੍ਹਾਂ 476, ਤੀਸਰਾ 332 ਜਮ੍ਹਾਂ 4097 ਜਮ੍ਹਾਂ 81। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਬਕਸੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਹੈ।
ठीक है। तो सब तो पहला साडे कोल है 305 जमा 299, ठीक है। तो 305 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 299 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। तो 5 ਤੇ 9 ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 9 5 14, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। तो ਇੱਕ ਹਾਸਲ ਆਏਗਾ। 8 ਤੇ 1 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 9 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। तो 3 ਤੇ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ठीक है जी। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 594। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। तो ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 2186 ਜਮਾ 476, ਠੀਕ ਹੈ। 2186 ਦੇ ਵਿੱਚ 476 ਆਪਾਂ ਜੋੜਨੇ ਨੇ। तो ये भी आप एवें लिख लांगे थे 2186 जमा 476, ठीक है विद्यार्थियों। तो सब तो पहला 6 साढ़े कोल 12 होंगे ने, तो एक हासिल आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएंगे। 8 ते 1 9, 9 ते 6 16, तो इतने 6 आ जाएगा साढ़े कोल, तो एक हासिल आ जाएगा। 1 1 2, 2 ते 4 6 आ जाएंगे, और ये 2 साढ़े कोल हेठा इवें आ जाएगा, ठीक है। तो साढ़े कोल दूजे सवाल का जोड़ा उत्तर है वो की बन जाता है 2662, 2662। इनू असी इस खाली बॉक्स के विच लिख देंगे, ठीक है। तो तीजा सवाल साढ़े कोल जोड़ा हुण है वो है 332 जमा 4097 जमा 81। ये 3 संख्यावां दा असीं जोड़ करना है। एक साढ़े कोल 2 अंकां वाली संख्या है, एक साढ़े कोल 4 अंकां वाली संख्या है, तो एक साढ़े कोल 3 अंकां वाली संख्या है। तो सब तो पहला आपां 4 अंकां वाली संख्या जिहड़ी इत्थे लिख लैंदे आ 4097। इस तो बाद 3 अंकां वाली संख्या आपां लिख लैंदे आ 332। इस तो बाद 2 अंकां वाली संख्या 81 लिख लैंदे आ, ठीक है विद्यार्थियों। तो हुण असीं इन्हां दा जोड़ करदे हां। 7 ते 2 जोड़े 9, 9 ते 1 10, थे साढ़े कोल 10 दी 0 आ जाएगी, एक इधर हासिल ले लांगे आपां। 9 ते 1 10, 10 ते 3 साढ़े कोल 13, 13 ते 8 बन जांदे ने 21, 21 दा 1 कित्थे आएगा तो 2 हासिल आ जाणगे। 2 ते 0 2, 2 ते 3 5, ठीक है। तो इहदा जोड़ जिहड़ा साढ़े कोल है सैंकड़े वाले अंकां दा 5 बन जाएगा, ठीक। इस तो बाद 4 है, 4 ਦਾ 4 ही बचेगा। सो विद्यार्थियों तीजे सवाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 4510 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ। 4510 ਭਾਵ 4510, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਖਾਲੀ ਬਕਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਨੋਟ ਕਾਪੀ ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵਰਕਸ਼ੀਟ 2 ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਸੰਕਰਿਆਵਾਂ ਬੇਸਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੀਜੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਰਕਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3, ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਅਤੇ 4 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਖਰੀਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 135 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 216 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਦੱਸੋ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੀਨੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਚੌਲ ਖਰੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੀਨੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲਈ, ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 3 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ, 3 ਕਿਲੋ चीनी दा मुल। तो 3 किलो चीनी दा मुल साढ़े कोल है 135 रुपए।
ठीक है विद्यार्थियों। इस तो बाद 4 किलो चावल ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 216 रुपए। 4 किलो ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹਨ 216 रुपए। ठीक है विद्यार्थियों। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ 3 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੇ 4 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ। 3 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਮਾ 4 किलो चावलों का मुल। ठीक है विद्यार्थियों। तो 3 किलो चीनी का मुल साढ़े कोल है 135 रुपए। 4 किलो चावलों का मुल साढ़े कोल है 216 रुपए। ठीक है जी। तो 135 ਤੇ 216 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। तो 135 ਜਮਾ 216 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ 6 ਤੇ 5 ਜਿਹੜੇ 11 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਸਲ ਆਏਗਾ, 1 ਤੇ 3 4, 4 ਤੇ 1 5 और 3 2 ਤੇ 1 3। ठीक है। तो ਕੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 351 रुपए ਬਣ ਜਾਂਦਾ है। ठीक है। तो इस तरह असी कह सकते हाँ कि जगप्रीत ने कुल 351 रुपए की खरीददारी की। इसलिए या इस तरह जगप्रीत ने कुल 351 रुपए की खरीददारी की। ठीक है विद्यार्थियों। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋੜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ अपना कुल खर्च जड़ा है वो कढ़ सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों। तो नहीं आ जाएगा ना। ठीक है जगप्रीत ने। ठीक है जी। तो हुण असी वर्कशीट 2 का अगला सवाल है जड़ा वो देखांगे। इस तो बाद तुसी देख सकते हो प्रश्न 4 दे साडे कोल 5 पार्ट ने, 5 सवाल इहदे विच सानूं दित्ते गए ने। पंजों ही सवाल जड़े वो जोड़ दे सवाल ने। ठीक है जी। इहदे विच कुछ जड़ा सानूं उत्तर दे अंश जड़े वो दित्ते गए ने और बाकी जड़े उत्तर दे अंश ने उत्थे खाली बॉक्स जड़े वो दिते गए हैं, असीं ये खाली बक्सियां नूं भरना है। ठीक है। जिदा कि सब तो पहला जड़ा सवाल है 493 जमा 309, तो इन्हां नूं जोड़ के असीं देखना है जो संख्या बनती है उहदे विचों जड़ा इकाई का अंक है वो सानूं 2 दिता गया है, जड़ा सैंकड़े का अंक है वो सानूं 8 दिता गया है, तो दहाई का जड़ा अंक है वो असीं इहदे विच पता करके कैलकुलेट करके अपने कोलों लिखना है ताकि ये साडे कोल कंप्लीट जड़ा उत्तर है वो पूर्ण रूप में सानू प्राप्त हो जाए। इसे ढंग के नाल आपां दूजे सवाल दे विच भी करना है। इहदे विच इकाई ते हज़ार वाला जड़ा अंक है वो नहीं दिता गया है। इसी तरह इहदे विच दहाई ते सैंकड़े वाला अंक असीं पता करना है। इसी तरह चौथा ते पंजवां सवाल भी असीं हल करांगे। ठीक है विद्यार्थियों। ये सारियां दियां रकमां जिहड़ियां ने स्टेटमेंट्स वो तुसीं कॉपी ते उतार लैणियां ने अते जल्दी तो जल्दी इहनूं सॉल्व करन दी कोशिश करनी है। ठीक है। तो आप देखते हैं सब तो पहला जड़ा सवाल है साढ़े कोल 493 जमा 309। ठीक है जी। तो 3 जमा 9 जड़ा साढ़े कोल हो जाते ने 12, 12 का 2 असीं इत्थे लिखांगे तो 1 जड़ा साढ़े कोल कैरी करांगे अगे हासिल आ जाएगा। 9 ते 1 विद्यार्थी साढ़े कोल 10 होंदे ने, भाव कि इस जड़ा ये अंकां दा जोड़ है वो साढ़े कोल 10 बनता है। 10 की 0 असीं इत्थे लिखांगे।
ठीक है। और एक जड़ा इत्थे लिखा जाएगा। तो 4 ते 1 5, 5 ते 3 8, ठीक है जी। तो पहले सवाल का जोड़ा आंसर है वो पूरा आंसर साढ़े कोल जोड़ा पूर्ण रूप विच 802 बनता है, ठीक है। तो एक बक्सा जोड़ा खाली सी साढ़े कोल, ये असीं इत्थे फिल कर लिया है। हुण इस तो बाद असीं दूसरे सवाल ते जावांगे। दूजे सवाल दे विच साढ़े कोल एक 4 अंकां वाली संख्या है, एक 3 अंकां वाली संख्या है। आपां इन्हां दा जोड़ करके देखना है और जो साढ़े कोल खाली बक्से ने उन्हां नूं असीं सही अंकां दे नाल भरना है ताकि साढ़े कोल पूर्ण रूप विच इस सवाल का उत्तर प्राप्त हो सके, ठीक है विद्यार्थियों। तो सब तो पहला 6 ते 9, 6 ते 9 साढ़े कोल हुंदे ने 15, 15 दे विचों 5 जिहड़ा है वो असीं इत्थे इकाई दे अंक विच फिल करांगे ते एक जिहड़ा है वो अगे हासिल लवांगे, ठीक है जी। तो 3 ते 1 साढ़े कोल 4 हो जाते हैं, 4 ते 9 जिहड़ा है ये 13 बनते हैं, 13 का 3 साढ़े कोल इत्थे आएगा तो एक असीं इत्थे हासिल लवांगे। 6 ते 1 7, 7 5 12, 12 दे विचों 2 इत्थे लिखा जाएगा, एक असीं अगे हासिल लवांगे, ठीक है। तो 2 ते 1 साढ़े कोल कितना बन जाता है 3, भाव के साढ़े कोल ये जिहड़ा बॉक्स 1000 वाला सी इहदे विच साढ़े कोल की आना सी संख्या 3। सो पूरा जिहड़ा कंप्लीट आंसर है वो इस सवाल का साढ़े कोल की बन गया है 3235, 3235 भाव 3235, ठीक है जी। तो इसी ढंग दे नाल हुण असीं तीजा, चौथा ते पंजवां सवाल है जिहड़ा वो भी हल करन जा रहे हैं। तीजा सवाल साढ़े कोल है 2017 जमा 928 जमा 74, ठीक है। तो ये आपां दहाई ते सैकड़े वाले जिहड़े अंक ने वो पता करने ने। तो आपां इन्हां नूं खाली जिहड़ा रफ काम लई सानूं जगह दित्ती है, इत्थे आपां लिखांगे सब तो पहला 4 अंकां वाली संख्या 217, उस तो बाद 3 अंकां वाली संख्या 928, उस तो बाद 2 अंकां वाली संख्या 74, ठीक है। इन्हां दा असीं हुण जोड़ करांगे। 8 7 साढ़े कोल हुंदे ने 15, 15 ते 4 19, तो साढ़े कोल इत्थे 9 आएगा इकाई दा अंक और एक जिहड़ा असीं हासिल लवांगे, ठीक है। तो 1 1 2 2 2 4, 4 ते 7 साढ़े कोल 11 हो जाते हैं, तो एक इत्थे आएगा तो एक असीं हासिल लवांगे। 9 ते 1 साढ़े कोल बनते हैं 10, 10 का 0 आ जाएगा तो एक जिहड़ा अगे हासिल लवांगे तो 2 ते 1 साढ़े कोल 3 बन जाते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह असीं देखिया कि साढ़े कोल तीजे सवाल का जिहड़ा उत्तर है वो 3019 बनता है, 3019। तो इहदे विच पहला अंक सानूं जिहड़ा 3 दिता गया है, आखिरी जिहड़ा अंक इकाई का 9 भी दिता गया है, 0 ते 1 असीं इत्थे फिल कर देंगे बॉक्सेस दे विच। तो इस तरह साढ़े कोल पूर्ण रूप विच तीजे सवाल का उत्तर जिहड़ा है वो प्राप्त हो जाता है 3019, ठीक है जी। तो इस तो बाद चौथा सवाल है साढ़े कोल 5077 जमा 537 जमा 98, ये बराबर साढ़े कोल किन्ने दे आएगा, ये असीं पूरा उत्तर इहदा हुण पता करांगे। सो इहदे विच सब तो पहली संख्या साढ़े कोल है 5077, दूजी संख्या है 537 और तीजी संख्या है 98। सो इहदे सब तो पहला असीं जोड़ करते हैं। 7 ते 7 14 होंदे ने, 14 ते 8 जिहड़ा साढ़े कोल 22 बन जाणगे, ठीक है। तो इत्थे 2 आएगा, 22 का 2 इत्थे आएगा और एक साढ़े कोल 2 जिहड़ा इत्थे हासिल चले जाएगा, ठीक है। 7 ते 2 9, 9 ते 3 12, 12 ते 9 21, तो 21 का 1 इत्थे आएगा, 2 इधर हासिल लवांगे, ठीक है जी। तो 5 ते 2 साढ़े कोल 7 हो जाते हैं, ये 7 बन जाएंगे, इस तो बाद ये 5 आएगा तो 5, वेरी गुड, ठीक है। तो साढ़े कोल चौथे सवाल का जिहड़ा आंसर है उत्तर है वो की बन जाता है 5712, 5712, ठीक है। ये विचों 71 जिहड़ा है वो सानूं पहले ही दिता गया है, इकाई दे अंक की जगह ते असीं 2 लिख देंगे और 1000 के अंक की जगह ते असीं 5 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह चौथे सवाल का भी जिहड़ा उत्तर है वो सानूं पूर्ण रूप विच प्राप्त हो जाता है। उत्तर की है 5712, 5712, ठीक है विद्यार्थियों। इस तो बाद पंजवां सवाल साढ़े कोल, मैनूं उम्मीद है कि तुसीं हुण तक शायद ये हल कर लिया होवेगा। तो देखते हैं आपां पंजवें सवाल दे विच साढ़े कोल 3 रकमां दित्तियां होईयां ने, 3344, 403 अते 37, इन्हां दा जोड़ जिहड़ा वो साढ़े कोल की बनदा है, ठीक। 3344, उस तो बाद 403, उस तो बाद 37, हाँ जी। तो ये सब तो पहला इकाई के अंकों असीं जोड़ते हैं, 4 ते 3 7 होंदे ने, 7 7 14, तो 4 इत्थे आएगा, एक हासिल चले जाएगा, ठीक। 4 ते 1 5, 5 ते 3 8,
इस तो बाद 4 3 साढ़े कोल 7 होंगे ने, ठीक है। तो 3 जोड़ा साढ़े कोल एस एच थले आ जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। तो 5वें सवाल का साढ़े कोल जोड़ा उत्तर है वो बनता है 3784 भाव 3784, ठीक है। ये 4 ते 8 सानू पहले ही 84 इतने दिते गए हैं। पहले 2 बॉक्स जोड़े उन्होंने आप जो उत्तर असी प्राप्त किया है वो असी फिल कर देंगे, ठीक है जी। तो 5वें सवाल का आंसर साढ़े को 3784 बन जाता है, ठीक। तो असी ये चौथे सवाल के जोड़े 5 पार्ट सगे वो असी आप हल कर ले ने, उन्होंने जोड़े उत्तर ने वो पूर्ण रूप के जोड़े वो प्राप्त कर ले गए हैं, ठीक है विद्यार्थियों। मैनू उम्मीद है कि सारे सवाल तुसी नोटबुक ते नोट भी कर ले होंगे और इन्हों समझ भी लिया होगा, ठीक है जी। और कुछ विद्यार्थियों ने तो मेरे तो पहला भी हल कर ले होंगे। इस तो बाद हुण साडे कोल इस वर्कशीट का जिहड़ा आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी सवाल है वो असीं देखांगे, ठीक है जी। सो पंजवें प्रश्न की जिहड़ी रकम है वो साडे कोल स्क्रीन ते तुसीं देख सकते हो। हेठां दित्ती सारणी विच कमल, कुलदीप ਅਤੇ रमन द्वारा किसी ਪ੍ਰੀਖਿਆ विच लए गए अंक दिते गए हैं। दसो ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖੋ, ठीक है विद्यार्थियों। तो 5वें सवाल की रकम असी पढ़ी है, थले साडे कोल एक सारनी जिहड़ी है वो दिती गई है। तो सब तो पहला आपां बच्चों सारनी नूं समझांगे कि किवें असी इहदे तों ये जिहड़ी सारनी है वो सानूं किस चीज़ नूं दर्शाउंदी है। सारनी की जिहड़ी साडे कोल पहली लाइन है ये देखो इत्थे साडे कोल विशा लिखा गया है और अगे साडे कोल विषयां दे नाम लिखे गए हैं, जिवें अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान अते पंजाबी, ठीक है। उस तो बाद विषय के थले 3 विद्यार्थियों के जिहड़े नाम है वो लिखे गए हैं, कमल, कुलदीप अते रमन, ठीक है। हुण असीं देखांगे कि ये जिहड़े अंक लिखे गए हैं उन्हां दा असल दे विच की भाव है। कमल के नाम के सामने जिहड़े अंक लिखे गए हैं ये सारे 5 विषयों के विचों कमल द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं। जिद्दां कि कमल द्वारा अंग्रेजी विच प्राप्त किए, कमल द्वारा अंग्रेजी विच प्राप्त किए अंक जिहड़े 63 ने, कमल द्वारा हिंदी विच प्राप्त किए अंक 60 ने, कमल द्वारा गणित विच प्राप्त किए अंक 68 ने, कमल द्वारा विज्ञान विच प्राप्त किए अंक 64 ने, कमल द्वारा पंजाबी विच प्राप्त किए अंक 59 ने, ठीक है। इसी तरह कुलदीप, रमन इन्हां दे भी असीं अंक देख सकते हैं। कुलदीप दे अंग्रेजी विच 58, हिंदी विच 71, गणित विच 90, विज्ञान विच 85, पंजाबी विच 90, ठीक है। और रमन दे अंग्रेजी विच 67, हिंदी विच 75, गणित विच 56, विज्ञान विच 99 अते पंजाबी विच 80, ठीक है विद्यार्थियों। तो सब तो पहला तो असीं ये देखा कि असीं सारणी नूं किवें पढ़ना है, सारणी तो किवें असीं समझना है, जो जानकारी सानूं सारणी दे विच दित्ती गई है, ठीक है जी। सो विद्यार्थियों इस सवाल विच आपां ये दसना है कि तिन्नां विचों किस ने सब तो ज़्यादा अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो ये चीज़ देखण लई सानूं पहलां तां इन्हां दे जिहड़े कुल अंक ने वो पता करने पैणगे। जिद्दां कि कमल ने जिहड़ा अंग्रेजी दे विच 63 अंक प्राप्त किए ने, है ना। कुलदीप ने 58 ते रमन ने 67, तो रमन के अंक इन्हां विचों ज़्यादा ने। पर अगर असीं गणित दे विच देखीए तो कुलदीप दे 90 अंक ने, कमल के 68 ते रमन के 56, ठीक है ना। तो ये कुलदीप के ज़्यादा बनते हैं। तो सानू की करना पेगा, सानू सारे विषयों विचों प्राप्त किए अंक जिहड़े कमल द्वारा ने उन्होंने जोड़ना पेगा। जोड़ के सानू पता लगेगा कि कमल ने कुल किन्ने अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। इसी तरह कुलदीप के सारे विषयों के अंक असीं जोड़ांगे, फिर वो साडे कोल कुलदीप के कुल अंक आउणगे। फिर रमन के सारे विषयों के अंक असीं जोड़ांगे, फिर साडे कोल रमन ने कुल किन्ने अंक प्राप्त किए हैं वो साडे कोल आएगा। फिर वो तिन्नां दी तुलना करते हुए, तिन्नां दे कुल अंकां दी तुलना करते हुए असीं दस सकांगे कि कमल, कुलदीप ते रमन दे विचों किस ने सब तो ज़्यादा अंक प्राप्त कीते, ठीक है। तो इस दा हल कढ़ण लई असीं की कीता, असीं की करांगे, असीं सारियां संख्यावां दा, सारे अंकां दा, वख-वख विषयां दा जोड़ करके असीं हर एक विद्यार्थी दे कुल अंक प्राप्त जिहड़े कीते ने उसने वो असीं पता करांगे, ठीक है विद्यार्थियों। तो सब तो पहलां आपां लिखदे हां कमल द्वारा प्राप्त कीते कुल अंक। हाँ जी विद्यार्थियों, ये साडे कोल 63 जमा 60 जमा 68
जमा 64 और प्लस 59। ठीक है जी। 63 अंग्रेजी दे, हिंदी दे 60, गणित दे 68, विज्ञान दे 64 ते 59। इन्हां शब्द असीं जोड़ करांगे। जो साडे कोल जोड़ आएगा वो असीं इत्थे लिख देंगे। ठीक है। सो असीं देखते हैं इन्हां शब्दां जोड़। 3 3 ते 8 साडे कोल 11 होणगे, 11 ते 4 साडे कोल 15 हो जाणगे, 15 ते 9 साडे कोल 24 बन जाते हैं। ठीक है। तो इत्थे 4 हासिल आएगा, 4 नीचे आएगा तो 2 हासिल आ जाएंगे। 6 ते 2 8 है, 8 ते 6 साडे कोल 14, 14 ते 6 20, 20 ते 6 26, 26 ते 5 साडे कोल 31 बनेगा। सो ये साडे कोल जोड़ जिहड़ा तिन्नां दा है वो 314 बन जाता है। ठीक है। सो इस तरह कमल द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक आपां देखे ने, इन्हां दा जोड़ कितना बनता है 314। ये जोड़ असीं रफ वर्क दे विच जिवें मैं कीता है उवें कर सकते हाँ। इस तो बाद कुलदीप द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक, कुलदीप द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक, ये साडे कोल ने सब तो पहला 58, उस तो बाद 71, उस तो बाद 90, उस तो बाद 85 और उस तो बाद फिर 90। ठीक है। तो इन्हां सारिਆਂ ਦਾ जोड़ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ लिख देंगे। सो विद्यार्थियों तुसीं देख सकते हो 8 ते 1 9, 9 ते 4 15, 15 का 4 असीं इत्थे लिख लिया, 1 हासिल, 5 ते 1 6, 7 6 13, 13 ते 9 22, 22 ते 8 30, 30 ते 9 जिहड़ा 39 साडे कोल बन जाता है। तो ये सारे अंकां का जोड़ साडे कोल कितना बन गया है 394। सो असीं इन्हां सब दा जोड़ जिहड़ा 394 वो लिख देंगे। ठीक है। इस तो बाद वारी आती है रमन दी। तो रमन दे कुल, रमन द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकां का जोड़, रमन द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक। हाँ जी, रमन के विषयों के आप अंक देखते हैं। साढ़े को 67 है, जमा 75, जमा 56, जमा 99 और रमन द्वारा पंजाबी विच प्राप्त किए गए अंक ने 80। ठीक है। तो इन्हां सब का जोड़ जिहड़ा वो आप इत्थे लिख देंगे। सो इन्हां सब अंकों का जोड़ जिहड़ा असीं देख लैंदे हैं। 7 5 12, 12 ते 6 18, 18 ते 9 साढ़े को 27 बनेगा। तो इत्थे 7 आएगा, 2 जिहड़ा असीं हासिल ले लवांगे। ठीक है। 6 ते 2 8 ने, 8 7 साढ़े को 15, 15 ते 5 20, 20 ते 8 28, 28 ते 8 साढ़े को 36 बन जाता है। ठीक, भाव के इन्हां सारे अंकों का जोड़ साढ़े को 367 बन गया है। इत्थे असीं लिख लांगे 367। ठीक है। तो हुण विद्यार्थियों साडे कोल तिन्ना ही स्टूडेंट्स, तीनों ही विद्यार्थियों के जिहड़े कुल अंक सानूं मिल गए ने। सब तो पहला कमल द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक जिहड़े ने वो 314 ने, कुलदीप द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 394 ने अते रमन द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 367 ने। ठीक है विद्यार्थियों, तो मैनूं लगदा हुण तां समझ ही गए होवोगे कि तिन्नां विद्यार्थियों दे विचों सब तो वध अंक किसने प्राप्त किए। ठीक है जी। तो सब तो वध अंक कुलदीप ने प्राप्त किए जो कि 394 हैं। ठीक है। और कमल द्वारा रमन जिहड़ा है वो दूजे नंबर पर रहा है और कमल जिहड़ा वो साडे कोल तीजे नंबर पर आया है। ठीक है जी। तो इन्हां दे विचों साडे कोल इस सवाल का जिहड़ा आंसर है वो 394 बन जाता है। तो वो अंक जिहड़े कुलदीप द्वारा प्राप्त किए गए हैं। तो असीं इत्थे लिख दांगे कि तिन्नां विद्यार्थियों दे विचों इस तरह या इसलिए तिन्नां विद्यार्थियों विचों कुलदीप ने सब तो वध अंक प्राप्त किए हैं जो कि 394 हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो कुलदीप ने सब तो वध अंक साडे कोल प्राप्त किए हैं जिहड़े कि 394 ने। ठीक है। तो इहदा हल कढण लई असीं कीता की है, इहदे च जोड़ कीता है। ठीक है। तो विद्यार्थियों ठीक है, इस तो बाद आपां
ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਵਰਕਸ਼ੀਟ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।